Hello everyone. Today I am going to discuss about Unit 8 Class 11th, that was Anatomy, Physiology and Kinesiology. This is second part of the chapter. In this video we are going to discuss about some systems like skeletal system or respiratory system, circulation system. Before starting the content, मैं सब लोगों से कहना चाहूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, पूरी वीडियोस को देखिए और दूसरों के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू सो मच। एंड जिन लोगों ने पहले से चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, थैंक यू सो मच फॉर दैट। आज सिस्टम्स में द फर्स्ट सिस्टम इज स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम as we know about it, that is the main frame of our body. Without bones we cannot even imagine a straight body, or we cannot imagine locomotion or any frame or support in the body. Even we cannot stand properly. So bones are basically frame of our body, and this is basically a skeletal system is basically a combination of bones in a human body. There are 206 bones. At the birth time, approx 270 bones present in the human body, but with the passing of time, the number will be increased, and वो पहुंच जाता है ऑटोमेटिकली 206 bones के आसपास. There are different size and shape bone in our body in skeletal system. Even the function of the bone is also different in our body. जब हम इसकी बात करते हैं, इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, बेसिकली इट्स अ 2 layered structure. The upper layer is thick and hard structure, and inner layer is quite spongy and full of fluid. In some bones there is a hole, or we can say a marrow, that is called bone marrow, and RBCs are basically made in this bone marrows. ये हम लोग को पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी में जो RBCs हैं वो इन बोन मैरोज में ही प्रोड्यूस होती हैं, वहाँ पर बनती हैं. सो बोन का एक बेसिक वर्क ये भी है. बोन्स बेसिकली बॉडी में लिगामेंट से या आर्चेज से, इसके अलावा टेंडन्स और कार्टिलेज से आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं. बेसिकली जब हम बॉडी में अपने बोन्स की बात करते हैं, इनको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. द फर्स्ट वन इज एक्साइल स्केलेटल, सेकेंड वन इज अपेंडिकुलर स्ट्रक्चर और स्केलेटल. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एक्साइल स्केलेटल, फ्रॉम हेड टू हिप जो बोन्स हमारी बॉडी में पाई जाती हैं, दे आर अंडर द एक्साइल स्केलेटल कैटेगरी. बेसिकली देयर आर 80 बोन्स इन दिस group. We can count these bones like in skull there are 20 bones present. Then in vertebral columns total 26 bones are there. Then one bone hyoid bone, and one is sternum, and one bone is then after that rib cage is total 24. 12 pairs are there, total 24 rib cages are there. Means 28, 26, 24, and one bone hyoid, and second one is sternum. Total 80 bones are present in our axial skeletal. Then बात करते हैं appendicular skeletal की. Basically appendicular skeletal consists of the upper and lower limbs, एंड इसके अलावा जो इस पार्ट में आता है, दैट इज पेल्विक ग्रिडल एंड पेक्टोरल ग्रिडल. बेसिकली इस पूरे जो हमारे अपर एंड लोअर लिम्स हैं, इसमें टोटल 126 बोन्स होते हैं. इन अपर लिम्स देयर इज 64 बोन्स, एंड इन लोअर लिम्स देयर आर 62 बोन्स. टोटल अपर एंड लोअर बॉडी मिलाकर के मीन्स एक्साइल एंड अपेंडिकुलर स्ट्रक्चर जो स्केलेटल है, दोनों को मिला करके टोटल देयर आर 206 बोन्स इन आवर बॉडी.
देन बात करते हैं व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ बोन इन आवर बॉडी। फंक्शंस की जब हम बात करेंगे, बोन्स प्लेइंग important, very important role in our body. Basically that is a frame for us. अगर ये स्केलेटल नहीं होगा, हमारी बॉडी में बोन्स नहीं होंगे, तो हमारे लिए हमारे जितने भी पॉस्चर्स हैं उसको मेंटेन करना पॉसिबल नहीं होगा। बेसिकली आप देख सकते हैं, इधर वी आर सिटिंग और वॉकिंग और रनिंग, बोन्स आर वर्किंग एज अ लीवर। मसल्स उनको गाइड करने का वर्क करते हैं, बट बेसिकली बोन्स का ही काम होता है टोटल हर एक में एक फ्रेम की तरह वर्क करने का। देन द सेकेंड इंपॉर्टेंट फंक्शन इज लोकोमोशन। लोकोमोशन बेसिकली बोन्स से ही पॉसिबल है। विदाउट बोन वी कैन नॉट लिफ्ट आवर legs and limbs by which we can move from one place to another place. So that is a very important part in that. No doubt, as we know about it, that the bones are attached with muscles, with the ligaments, and bones are present with the bones with ligament, tendons, and that cartilage. But without bone, we cannot move here and there. We cannot. The locomotion is not possible in human body. Then second thing, the third important is support. As we know about it that the bones are making a cave or a box for our internal organs like brain. For brain there are skeleton bones, जिसने एक प्रॉपर बॉक्स की तरह स्ट्रक्चर बना के रखा है, जिसके अंदर हमारा ब्रेन बहुत ही सेफ है। आफ्टर दैट आर रिब केज, अंडर आर रिब केज देर आर हार्ट, लंग्स एंड ऑल द इंटरनल पार्ट्स। जितने भी इंटरनल हमारी बॉडी के बहुत सॉफ्ट पार्ट्स हैं या जितने भी बहुत डेलिकेट पार्ट्स हैं, उन सभी के लिए बोन्स एक प्रॉपर सेफ बॉक्स बनाता है या उसको सपोर्ट करता है। देन फॉर द कैल्शियम स्टोरेज, ये हम सभी को पता है कि बोन्स का जो काम है हमारी बॉडी में, वो कैल्सिफिकेशन को की प्रोसेस को बढ़ाना है, जिससे हमारी टीथ, हमारी जो बोन्स हैं, इवन हमारे हेयर को भी ये सपोर्ट करते हैं कैल्शियम के को स्टोर करके या कैल्शियम को अपने अंदर उसके सिंथेसाइज करके। देन द नेक्स्ट important part is endocrine regulation. Endocrine system means the system by which the hormones and enzymes are being secreted. ये एक ऐसा सिस्टम है जो बेसिकली जिसको हम लोग बहुत ज़्यादा कंसिडरेशन में नहीं लेते हैं, या कह सकते हैं कि ज़्यादा नहीं करते हैं, बट ढेर सारे ऐसे बोन्स हैं जो कि हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड से एसोसिएटेड होते हैं, और वो कह सकते हैं कि हमारी बॉडी में ग्लूकोज के सेक्रेशन को, ग्लूकोज के परसेंटेज को या फैट के डिपोजिशन को, इन सब चीज़ों को रेगुलेट करते हैं, जिनसे कि हमारी बॉडी में जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है वो एफिशिएंटली वर्क करे, और जितने भी हार्मोन्स और एंजाइम्स हमारी बॉडी में अवेलेबल हैं वो प्रॉपरली और एफिशिएंटली वर्क करे। आफ्टर द इम्पोर्टेंस ऑफ बोन्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स। देर आर 5 types of bones present in our body. In that, the first, basically this classification is based upon the size, shape and size of the bones. So the first type of bone is long bones. Long bones are present in our upper and lower limbs, and excepting wrist and ankle joint, because those are the short bone categories. These long bones acts in our body as a lever and execute locomotion or movement. Without the support of long bones, we cannot, the locomotion is not possible in our body. For example, of these bones there are femur, humerus, radius, ulna, tibia or fibula. All these bones are the example of long bones. Then the second category is short bone. Short bone की जब हम बात करते हैं, basically there are
these bones are present in our wrist and ankle joint. बेसिकली ये बोन्स एक दूसरे के ऊपर ग्लाइड करके मूवमेंट में हेल्प करते हैं. फॉर एग्जांपल carpals and tarsals are the, even metacarpal and metatarsals are the best example of the short bones. Even the shortest bone in our body is present in ear, that is incus, malleus and stapes. So these are the example of short bone. After that, the third type of category is flat bones. Flat bones are basically protective bones in our body. Basically इनका काम हमारी बॉडी में प्रोटेक्शन करना है. एंड साइज़ में ये फ्लैट होते हैं, साथ में काफ़ी इनकी ब्रेथ ज़्यादा होती है, लॉन्ग भी होती हैं बट इनकी ब्रेथ ज़्यादा होती है. एंड बेसिकली जो प्रोटेक्शन में इनका जो पार्टिसिपेशन है वो बहुत ज़्यादा है. सो दीज बोन्स आर प्रेजेंट इन आर thoracic cavity like sternum and our rib bones. इसके अलावा scapula. These bones are the flat bones. After that, the third category is semoid bones. Semoid bones are basically independent bones which are basically present freely in our body. Basically, these bones are attached with the joints, with cartilage, or we can say these bones are present in our body and attached with tendons and and ligaments in our body. For example of these bones are patella bone and fibula bone. These are the semoid bones. Then the fifth category of the bones is irregular bones. These bones are irregular in the shape and size. बेसिकली ये हमारी pelvic girdle में पाए जाते हैं. इसके अलावा हमारी जो वर्टिब्रास हैं वो शेप एंड साइज में बहुत ही इरेगुलर होते हैं. सो दिस इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स. बेसिकली द 5 types of the bone present in our body, that is long bone, short bone, flat bone, semoid bone and irregular bone. After that, we are going to discuss about the joints and types of joint. Basically in our body, in a human body, there are 3 types of joint: movable joints, immovable joints and slightly movable joints. जिसको हम movable joint बोलते हैं उनको हम कह सकते हैं movable joints और freely movable joints. देन immovable ऐसे joints हैं जो जहाँ पर 2 बोन्स आपस में मिलते हैं बट वो मूव नहीं करते हैं, वो एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं, उसमें कोई भी मूवमेंट पॉसिबल नहीं होता है. देन स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स की बात करते हैं. स्लाइटली मूवेबल वो जॉइंट्स हैं जहाँ पर हमारी बॉडी में या उस पर्टिकुलर जॉइंट्स के कुछ ही डायरेक्शन में आई कैन से कुछ ही डायरेक्शन में उसके मूवमेंट्स पॉसिबल हैं. मतलब उसके जो मूवमेंट्स है वो काफ़ी स्ट्रिक्टेड हैं, काफ़ी लिमिटेड हैं. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ जॉइंट्स, दैट इज इमूवेबल जॉइंट्स, और ऐसे जॉइंट्स जो बिल्कुल ही मूव नहीं करते हैं. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द इमूवेबल जॉइंट्स, दीज जॉइंट्स आर बेसिकली प्रेजेंट इन आवर बॉडी इन स्केलेटल स्कल. हमारी हेड बोन्स में जितने भी जॉइंट्स हैं वो बिल्कुल स्विचर्स हैं, जो भी चाहे वो फ्रंटल है, पैराइटल है, ऑक्सियल है, ये जितने भी बोन्स हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं बट ये मूव नहीं करते हैं. ये बिल्कुल फिक्स्ड हैं अपने प्लेस पर, और इसी से स्कल का जो एक कहते हैं एक बॉक्स टाइप स्ट्रक्चर बन रहा है वो कंप्लीट हो रहा है. इनमें कोई भी जॉइंट नहीं होता, कोई भी इसमें कह सकते हैं कि किसी तरह का भी इसमें मूवमेंट पॉसिबल नहीं होता है. देन हम लोग बात करते हैं स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स की, जिसके कुछ अपने लिमिटेशंस हैं, जो कुछ ही मूव कर सकते हैं. स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स बेसिकली इनके अपने कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, लाइक इन आवर वर्टेब्रल कॉलम्स. हमारे जो वर्टेब्रास हैं वो आपस में इस तरह से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के बीच में वो जुड़े हुए हैं. अब ऐसी कंडीशन में वर्टेब्रास के कुछ अपने लिमिटेशंस हैं कि वो एक साइड तो मूव कर सकते हैं आगे पीछे, बट वो ऊपर नीचे मूव नहीं कर सकते इस तरह से. तो ऐसे और भी बॉडी में ढेर सारे एग्जांपल्स हैं जो कि बहुत सर्टेन, जिसकी जो मूवमेंट्स हो बहुत ही लिमिटेशंस हैं उसके. देन बात करते हैं फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स की.
when we are talking about the freely movable joints, in that the first joint is ball and socket joint. Ball and socket joint is present in our shoulder and hip, जो बेसिकली हमारे जो ये ह्यूमरस बोन है या फीमर बोन है, दोनों ही हमारे एक सॉकेट में कसने, जो हमारी ये स्कैपुला है उसकी जो ग्लेनोइड कैविटी है वहाँ पर जो हमारे ह्यूमरस बोन की जो का हेड है वो इस तरह से जुड़ा हुआ है, और इस एक बोन में 360 डिग्री मूवमेंट इजीली पॉसिबल है हर एक साइड से। तो दिस इज कॉल्ड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हमारी शोल्डर में प्रेजेंट होता है। इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो शोल्डर है, इसके अलावा हिप जॉइंट है। हिप में भी हमारे जो पैर है वो पूरा 360 डिग्री मूवमेंट इजीली कर सकता है। देन बात करते हैं ग्लाइडिंग जॉइंट की। ग्लाइडिंग इज़ अ मूवमेंट जहाँ पर एक कोई भी एक फ्लैट सरफेस के ऊपर या एक बड़ी बोन के ऊपर जो स्मॉल बोन्स हैं वो इजीली कह सकते हैं ग्लाइड कर जाते हैं, और एक जो मूवमेंट है वो बेसिकली क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल कार्पल्स एंड टार्सल्स, जो हमारे रिस्ट बोन में और एंकल बोन में प्रेजेंट बोन्स हैं, वहाँ पर ये बोन्स पाई जाती है और वहाँ से ये मूवमेंट क्रिएट होता है। देन इसके अलावा दो जो नेक्स्ट जॉइंट है दैट इज कॉल्ड हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट इज द एंगुलर मूवमेंट इन द डायरेक्शन एनेबल। बेसिकली a limited motion is possible in this joints. For example, elbow and knee. Only elbow can, like अगर हम अपने हाथ से कर्लिंग कर रहे हैं, बाइसेप कर्लिंग कर रहे हैं, तो ये सामने तो आ सकता है, बट आफ्टर 180 डिग्री ये उसके नीचे नहीं आ सकता है। तो इस ये जो बोन होता है इसके बेसिक इन जॉइंट्स के बीच में कुछ लिमिटेशंस हैं इसके मूवमेंट्स के, उसके अलावा ये मूवमेंट नहीं कर सकता है। फॉर एग्जांपल एल्बो एंड नी जॉइंट। देन बात करते हैं कॉन्टिलेट जॉइंट की। कॉन्टिलेट जॉइंट इज बेसिकली इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो हमारे रिस्ट जॉइंट है। ये इनमें 2 एंगुलर मूवमेंट पॉसिबल होता है, मतलब जॉइंट हमारी यहाँ भी आ सकती है और इजिली यहाँ पर भी आ जा सकती है। ठीक है, इसमें रोटेशन बेसिकली अलाउ नहीं होता है। इसके अलावा जो और एक जॉइंट है दैट इज कॉल्ड सैडल जॉइंट। सैडल जॉइंट इज प्रेजेंट इन आवर थंब। लाइक फॉर एग्जांपल थंब हमारे फिंगर्स की तरह पे, फिंगर्स हमारी पूरी बेंड करके अंदर आ सकती हैं, बट हमारा थंब बेंड होके नहीं आ सकता है। तो थंब के भी अपने कुछ इस जॉइंट के भी लिमिटेशंस हैं। ये पीछे बिल्कुल मूव नहीं कर सकता है इसके कंडीशन में, तो दैट इज कॉल्ड सैडल जॉइंट। इसके अलावा जो एक लास्ट जॉइंट है दैट इज कॉल्ड पिवट जॉइंट। पिवट जॉइंट इज प्रेजेंट इन आवर नेक, जहाँ पर किसी एक बोन के ऊपर कोई एक दूसरा पार्ट रखा हुआ और वो आराम से मूव कर रहा है, उस एक्सिस के ऊपर मूव कर रहा है, दैट इज कॉल्ड पिवट जॉइंट। इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो हमारा नेक है। नेक जॉइंट जो है वो हमारा जो हेड का स्कल पार्ट है वो एटलस बोन के ऊपर रखा हुआ है। जो दीज वर द क्लासिफिकेशन ऑफ joints. Now the next topic we are going to discuss about the muscular system. मसल्स की जब हम बात करते हैं, बेसिकली हमारी बॉडी का जो 80% बॉडी वेट है वो मसल्स से मिलकर बना हुआ है, और मसल्स का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन हम लोगों ने ऑलरेडी फर्स्ट जो वीडियो है उसमें डिस्कस किया हुआ है कि जो मसल्स का पार्ट है जो बेसिकली वर्क है हमारी बॉडी में, वो हमारे बोन्स को प्रोटेक्शन देना है, उसके ऊपर एक लेयर क्रिएट करना है, साथ में लोकोमोशन में मसल्स हमारी बोन्स को हेल्प करते हैं एज अ सपोर्टर। बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मसल्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी, दैट इज स्ट्रेटेड, अनस्ट्रेटेड एंड कार्डियक मसल्स, जिसको हम लोग वॉलंटरी, अनवॉलंटरी एंड कार्डियक मसल्स बोलते हैं। स्ट्रेटेड मसल्स वो मसल्स हैं जो बेसिकली जिसको हम लोग वॉलंटरी मसल्स बोलते हैं, जिनके ऊपर हमारा पूरा कंट्रोल होता है। अनवॉलंटरी मसल्स जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है। एंड कार्डियक मसल्स वो मसल्स हैं जिनमें जो हमारी हार्ट में प्रेजेंट होती हैं। तो बेसिकली दिस इज muscular system in a glance. Now the next system is which we are going to discuss, that is respiratory system. रेस्पिरेटरी सिस्टम की जब हम बात करते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम में आता है बेसिकली हमारी नॉस्ट्रल कैविटी। इसके अलावा जो हमारी श्वास नली है जिसमें कि आता है फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, देन लंग्स के जो स्ट्रक्चर हैं वो आते हैं। बेसिकली रेस्पिरेटरी सिस्टम
का जो फंक्शनल पार्ट है वो बेसिकली दो स्टेप में कंप्लीट होता है, दैट इज़ इनहेल एंड एक्सहेल। जब हम ब्रीदिंग कर रहे होते हैं ऑक्सीजन को, या कहते हैं ऑक्सीजनेटेड जो एयर है, जो एटमॉस्फेरिक एयर है, उसको हम इन कर अपनी नॉस्ट्रल कैविटी से या नोजल कैविटी से इनहेल करते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड इनहेल और ब्रीद इन। जब हम इसको वापस सांस को बाहर छोड़ते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ब्रीद आउट। प्रॉपर जो एयर है वो हमारी पहले नेजल कैविटी से, इसके बाद फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, देन जो लंग्स का पार्ट है जिसमें ब्रांचियस आता है, ब्रांचियोल्स आते हैं, देन लंग्स, और वहाँ से होते हुए लंग्स की जो एल्वुलाई स्टैक है वहाँ तक ऑक्सीजन पहुँचता है। देन ऑक्सीजन ब्लड के साथ मिक्स होकर के ऑक्सो जो ब्लड में हीमोग्लोबिन पार्ट है उससे ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, और हमारे बॉडी के हर एक पार्ट में वापस सर्कुलेट हो जाता है। और फिर बॉडी के मसल्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वहाँ पर ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूल है वहाँ जा कर के ऑक्सीजन को रिलीज करता है, और वापस वो हीम पार्ट CO2 से रिएक्शन करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, जो वापस ब्लड के साथ लंग्स में आता है। और फिर जब हम ब्रीद आउट करते हैं तो ऐसी कंडीशन में वो कार्बन डाइऑक्साइड हम वापस एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देते हैं। दिस इज द फिनोमिनन ऑफ ब्रीदिंग, और वी कैन से रेस्पिरेशन। अब हम लोग बात करते हैं कि कौन कौन से बॉडी पार्ट्स इसमें इन्वॉल्व हैं। इसमें जो सबसे पहली बॉडी पार्ट है दैट इज नोजल कैविटी, और इसको हम लोग बोलते हैं द नोज। नोज बेसिकली वो ऑर्गन है जो हमें नेकेड आई से दिखाई पड़ता है। इसका बेसिकली काम होता है रेस्पिरेशन में, ब्रीद इन करना, ब्रीद आउट करना। जो एयर पासेज है वो नोज के थ्रू ही होता है। बेसिकली इसका जो फ्रेम है वो कार्टिलेज बोन से बना होता है। एक इसके अलावा ऊपर इसकी एक मसल्स की लेयर होती हैं, इनमें कुछ केराटिन या कह सकते हैं कुछ हेयर्स पाए जाते हैं जो कि किसी भी तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शन को या कुछ और जो एक्सटर्नल पार्टिकल्स हैं वो हमारे जो हमारी एयरवे है, हमारी जो ब्रीदिंग कैविटी है उसमें जाने से रोक देते हैं। देन बात करते हैं फेरिंग्स की। फेरिंग्स इज बेसिकली अ ट्यूब, और कह सकते हैं इट्स अ जो एयर हमारी नोजल कैविटी से अंदर जाती है, फेरिंग्स उसके नोजल कैविटी के बाद फेरिंग्स का पार्ट स्टार्ट हो जाता है। बेसिकली लैरिंग्स जो प्रेजेंट होता है वो हमारी आफ्टर द नेजल कैविटी एंड अप टू द एंड ऑफ द ओएसोफेगस, जो हमारी बेसिकली एलिमेंट्री कैनाल का एक बेसिक पार्ट है, वहाँ तक इसकी ये प्रेजेंट होता है, वहाँ तक इसकी लंबाई होती है। बेसिकली एक लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स का बना हुआ एक ऐसा पार्ट है जो कि हमारी फूड की एसिमुलेशन में भी हेल्प करता है। साथ में इसका एक जो बेसिक पर्पस है वो फाइबर्स को, और एक ऐसी कंडीशन आती है जहाँ पर ये एक दूसरे को, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है और जो हमारा लैरिंग्स का पार्ट है, दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे होते हैं। तो इन दैट कंडीशन वी दोनों को आपस में टच या एक तरह से क्रॉस कर रहे होते हैं ये। देन द थर्ड part is larynx. Larynx is basically known as the voice box of human body, जहाँ से आवाज़ निकलती है। But there is a very important role of larynx is in respiration also, because in respiratory system जो एयर पास होती है वो larynx से होकर के पास होती है, और साथ में वहाँ पर एक जो ट्रैकिया तक एयर को पहुंचाने का काम होता है वो लैरिंग्स करती है। देन बात करते हैं ट्रैकिया की। ट्रैकिया इज बेसिकली अ हैलो सिलेंड्रिकल ट्यूब अबाउट 11.2 सेंटीमीटर्स। इसकी जो ब्रेथ है दैट इज 2.5 सेंटीमीटर्स, एंड बेसिकली ये नीचे जाकर के दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, दैट इज कॉल्ड ब्रांचियोज। ब्रांचेज में के जो साइज और शेप दोनों इससे स्मॉल हो जाता है, क्योंकि एक राइट और दूसरे लेफ्ट जो लंग्स हैं उसमें ये चले जाते हैं। देन द नेक्स्ट स्टेप इज लंग्स। लंग्स इज बेसिकली इसका जो लोकेशन है वो बेसिकली डायफ्राम जो मसल्स हैं उसके ऊपर होता है। दोनों
लंग्स की जो साइज़ में थोड़े डिफरेंसेस भी होते हैं। जो लेफ़्ट लंग का साइज़ है वो थोड़ा छोटा होता है बिकॉज उस साइड में हार्ट की लोकेशन होती है। राइट लंग्स का जो साइज़ थोड़ा बड़ा होता है। इसके अंदर ढेर सारे ब्रांक्यूल्स पाए जाते हैं जो कि बेसिकली ब्रांक्यूल्स की जो सब ब्रांचेस हैं। एंड इसके अलावा इसके अंदर एल्वेओलाई सैक होते हैं। दोज आर द बलून लाइक स्ट्रक्चर्स जो कि बेसिकली जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो वो अपनी साइज़ में बढ़ जाते हैं और वापस उनका जो ऑक्सीजन का ऑब्जर्वेशन है वो बढ़ा देते हैं। एक और जो मेन पार्ट आता है ब्रीदिंग में वो है डायफ्राम। डायफ्राम पे इसका जो मसल्स हैं उनका बेसिकली वर्क ये है कि ये जब हमारा लंग्स ब्रीथ इन करता है, जब हम लंग्स में ऑक्सीजन को फिल करते हैं तो डायफ्राम जो मसल्स हैं वो नीचे चली जाती हैं, अपनी बेस पर चले जाते हैं और लंग्स का साइज बढ़ जाता है। जब हम ब्रीथ आउट कर रहे होते हैं तो ऐसे कंडीशन में डायफ्राम जो मसल्स हैं वो ऊपर आती हैं, लंग्स को पुश करते हैं, जिससे कि जो एयर है हमारी लंग्स में वो बाहर निकलने में हेल्प करती है। तो दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द रेस्पिरेशन सिस्टम। देन बात करते हैं व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ द रेस्पिरेशन। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ द रेस्पिरेशन, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस अबाउट द इनहेल एंड एक्सहेल सिस्टम और ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। इन ब्रीदिंग सिस्टम और दैट इज कॉल्ड इंस्पिरेशन, हम लोग जो एटमॉस्फेरिक एयर है, जो ऑक्सीजनेटेड एयर है, उसको इन करते हैं, उसको ब्रीदिंग सांस से अंदर लेते हैं और हम उस ऑक्सीजन को अंदर लेकर के ब्लड के साथ रिएक्ट करके वो हमारे मसल्स में जा रही है। वापस मसल्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वापस कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में वापस लंग्स में आते हैं एंड देन उसको हम ब्रीद आउट करते हैं। जो ब्रीद आउट की प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड एस्पायरेशन और एक्सेल। तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ द रेस्पिरेशन सिस्टम। नाउ there is two types of respiration in human body. This is called a classification of respiration. One is internal respiration and second one is external respiration. Classification of respiration is basically it is classified in two types of respiration. The first type of respiration is external respiration. Already we have discussed about the mechanism of respiration. In that it was inhale and exhale or we can say inspiration और expiration process। जो हम लोग सांस को अंदर लेते हैं ऑक्सीजन को और साथ में वो हमारी मसल्स तक जाता है, इस पूरे प्रोसीजर को और वापस उसे लंग्स में लाना और लंग्स से बाहर करना, ये जो प्रोसीजर है दैट इज़ कॉल्ड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। वापस जब हमारी मसल्स तक ऑक्सीजन पहुंच जाता है, मसल्स के अंदर टिश्यूज़ के अंदर जब ऑक्सीजन का ऑब्जर्वेशन होता है दैट इज़ कॉल्ड ऑक्सीजन अपटेक बाय मसल्स और टिश्यूज़। वहाँ पर ऑक्सीजन को रिजर्व रखा जाता है किसी भी इमरजेंसी नीड के लिए या किसी भी ऑक्सीजन एनर्जी डिमांड को कंप्लीट करने के लिए। ये जो प्रोसीजर है, क्योंकि हर एक एनर्जी रिक्वायरमेंट प्रोसीजर में, चाहे वो कोई भी रिएक्शन, चाहे वो एनाबॉलिक रिएक्शन हो या मेटाबॉलिक रिएक्शन हो, वहाँ पर एक फ्यूल की ज़रूरत पड़ती है एंड ऑक्सीजन इज़ बीइंग यूज्ड एज अ प्राइमरी फ्यूल इन आवर बॉडी फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। तो ऐसी कंडीशन में बेसिकली इस जो रिजर्व्ड ऑक्सीजन है उसको यूज़ किया जाता है। दिस प्रोसीजर इज कॉल्ड इंटरनल रेस्पिरेशन, जो कि और इसी को हम लोग सेलुलर रेस्पिरेशन भी बोलते हैं, जो कि सेल्स के अंदर बेसिकली कंप्लीट होता है। आफ्टर क्लासिफिकेशन ऑफ respiration, now we are going to discuss about the importance of respiration in our body. When we are talking about the importance of respiration in our body, basically as a living being or as a human being, we are in living category just because of the respiration quality. So this is a physiological phenomenon by which we are alive, we are in living category. Second thing, by respiration we are getting a lot of energy, क्योंकि जो ऑक्सीजन होता है ये हमारी बॉडी में एनर्जी को क्रिएट करने का सबसे प्राइमरी फ्यूल है। इसके अलावा इनहेलर एक्सहेल सिस्टम से हमें एनर्जी मिलती है ढेर सारा, प्लस ऑलिफिकेशन प्रोसेस से हमें स्मेल को
पहचानने में या उसको फील करने में हेल्प मिलती है। साथ में वन मोर प्रोसीजर देयर लाइक विद द एनर्जी और विद द कह सकते हैं कि जो हम साउंड सिस्टम हमारी जो निकलती है, हमारी जो आवाज़ निकलती है, उसमें भी रेस्पिरेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि हमारी जो लैरिंग्स हैं उसमें वाइब्रेशन तभी होगा जब हमारी ब्रीदिंग, जब भी हम बोलते हैं तो सांस बाहर निकलती है या अंदर जाती है। तो ये प्रोसीजर जो आवाज़ निकालने का या जो हमारी वॉइस बॉक्स है उसको वाइब्रेट करने का भी एक मेजर वर्क हमारा रेस्पिरेशन सिस्टम करता है। सो थैंक यू सो मच। इस वीडियो में मैं इतना डिस्कस कर रहा हूँ। इसका जो जो दो टॉपिक बच रहे हैं अभी, दैट इज़ वन ऑफ द टॉपिक इज़ सर्कुलेशन सिस्टम। इन सर्कुलेशन सिस्टम विल डिस्कस अबाउट द हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड अदर थिंग्स। एंड इस चैप्टर में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ लिम्फेटिक सिस्टम, विच इज़ ऑल्सो वर्किंग similarly as circulation system is working. इसके अलावा एक दो टॉपिक्स हैं लाइक ऑक्सीजन डेप्थ एंड सेकेंड विंड, दैट विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच वंस अगेन। प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक द चैनल एंड वॉच फुल वीडियोज़। थैंक यू सो मच।